Okay, so welcome back to the training session once again, respected teachers. So, I hope you had some refreshment. Are you feeling good? Yes. And now there is a smile also on your face. कोई स्माइल सबके चेहरे पे नजर आ रही है? पेट भर गया? चेहरे पे नजर आ गया? Now, so many slides are there. We share few those that are present in the computer and those that are present inside me. बहुत सारे ऐसे स्लाइड्स हैं, वो स्लाइड्स जो वहाँ पर दिख रहे हैं, जिसको अभी हम लोग आपस में शेयर करें। कुछ ऐसे भी स्लाइड्स हम अंदर टीचर्स होते हैं जो उनके अंदर होते हैं और उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए कभी कभी लोग उस टाइम उस मौके का इंतजार करते हैं। So the slides that are in the computer or these slides I'm going to read. It has some meaning in our lives. Approaches to teaching, approach, method, procedure and techniques in learning. Approaches, and approach is a theory about learning or even a philosophy of how people learn in general. They can be psychological focus such as behaviorism or cognitivism, philosophies such as idealism or realism. Sometimes we believe that I can use my own philosophy in order to teach something to the children. कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं अपनी फिलॉसफी लगा करके किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट तक पहुंचा सकता, और कभी कभी डिपेंडेंट होते हैं कि एग्जैक्टली जो थिंग्स बुक में है उस चीज को डिलीवर कर सकते। In my senses, I think that if you utilize your own philosophy to deliver the things apart from the books, that is the better option. That is the thing which can just attract the children or make the class active. A way of dealing with the situation problem, a way of looking at teaching and learning, and approach gives rise to methods, the way of teaching something which use classroom activities or techniques to help learners learn. So approaches, these all are the approaches which will help you move ahead. आगे बढ़ने में मदद करेगा. A way of dealing with a situation or problem, एक तरीका कैसे आप किसी प्रॉब्लम या किसी सिचुएशन से डील करते हैं. A way of looking at teaching and learning means how you teach, how one learns, what's the way, what's the procedure, what's the strategy followed. That also matters, and an approach gives rise to these methods. These methods, when they are implemented or we are just utilizing in our teaching methods, it is a kind of approach. और ये एक ऐसी पहल होती है जो बच्चों को आपकी तरफ आकर्षित करती है, और आकर्षित वहां पर कर सकता है। हम सब ने इस चीज को नोटिस किया है कि किसी टीचर की क्लास में बच्चे जो है वो बड़े शांत होते हैं, बड़े गौर से उनकी बात सुनते हैं, और कोई टीचर क्लास में जैसे ही घुसते हैं शोर होना शुरू हो जाता है। कितना भी चिल्ला लो, keep quiet, stay quiet, I'll throw you out of the class, stand up, hold your ears. कितनी भी बातें बोलते लेकिन आपकी बात को समझते नहीं, आपकी बातों में मजाक में नहीं. It happens. And some students, they are so attracted to some of the teachers that when they will come to the class, they will understand there is a feelings from in themselves कि आज कुछ नया पढ़ाएंगे, कुछ अच्छा पढ़ाएंगे सर. It happens. So this approach gives rise to method. Next slide, sir. Activities are involved in that, techniques are involved in that. Now, an approach that leads to a method is method. A method is an application of an approach in the context of teaching. What is method? ये approach का एक application होता है जो कि हम लोग teaching के context में इस्तेमाल करते हैं. Procedures are the step-by-step measures to execute a method.
procedures are followed when doing any of the thing. It's a kind of experiment only, daily life experiment. आप लोग जो experiment बचपन में किया करते थे या पढ़ाई लिखाई में किया करते थे, डाइसेक्शन, स्टेप बाय स्टेप। डाइसेक्शन कैसे करते थे? बायोलॉजी लैब में यदि बायो लैब में गए, किसी चूहे को पकड़ा, पटक पटक करके उसको अगर हालत की करके देखेंगे तो उसके आगे उसको दिखाई नहीं देगा। There is a step, a procedure follow. सबसे पहले उसको डाइसेक्ट करने के तरीके, प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। Then we come to know about what are the organs. ये एग्जांपल देख करके चेहरे पे मुझे हंसी थोड़ी सी वरी नजर आ रही है। चलिए कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। प्रोसीजर्स आर फॉलो। अगर हम लोग किसी सिस्टम से या स्टेप बाय स्टेप किसी मेथड को यूटिलाइज करते हैं तब जाकर के बातें जो है वो समझ में आती है। जैसे वो बातें जो बच्चे ने क्लास 1 में नहीं सीखी और आज आप उससे क्लास 3 की बुक्स को पढ़ाओगे तो वो समझ नहीं पाएगा। देयर इज अ प्रोसीजर फॉर दैट। पहले हम लोग अल्फाबेट सीखते हैं, बाद में वोवेल और कौन सा कॉन्सोनेंट है ये समझ में आता है। Then comes techniques. A technique is a single activity that comes from a procedure. It's a simple single activity which comes from a procedure. Procedure को जब फॉलो करेंगे तो एक एक्टिविटी आपके मन में आएगी, आपको समझ में आएगा कि किस चीज को इन्वॉल्व करना है। Then comes technique involves approaches that lead to methods that are broken down into procedures and procedures that are a collection of techniques. Approaches. This line is very important. Approaches that lead to methods. आपके अपने पहले आपके मेथड्स को राइज कराएंगे। Methods that are broken down into procedures, then those methods will be broken down into procedures and procedures that are a collection of techniques. Those procedures, they will be the collection of the techniques that you can utilize or use in your teaching and learning activities and at the classroom or wherever you are. This is not the place where you can teach the children. When you are at your home, you can teach your own child. When you are in the society, you can teach the children over there. Simplest talk that can give rise to a new idea in a child is a teaching. Okay? So, procedures, they are the collection of techniques. Next slide, sir. Now, teaching approaches. What are teaching approaches? Teacher-centered approach. The teacher is perceived to be the only reliable source of information in contrast to the learner-centered approach. Teacher-centered approach में क्या होता है? Reliable, सिर्फ और सिर्फ टीचर पे भरोसा किया जाता है, उनकी बातों पे भरोसा किया जाता है। Means he is perceived to be the only reliable source of information in contrast to the learner-centered approach. Teacher पे भरोसा करता है। Then comes learner-centered approach, in which it is premised on the belief that learner is also an important resource because he or she too knows something and is therefore capable of sharing something. Learner-centered approach क्या है? Learner-centered approach में जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं वो मानते हैं कि मैं भी कुछ जानता हूँ, मुझे भी कुछ पता है जो मैं शेयर कर सकता हूँ about others. It is not only the teacher who can teach us. I am also capable of doing something. I can also just give my ideas or certain points that can be useful. The subject matter centered approach. Subject matter gains primacy over that of the learner. Subject matter centered approach, it gains privacy over the learner. Means subject से related जो चीज का सटीक ज्ञान हमारे अंदर होता है वो हमें बिल्कुल तृप्त बनाता है कि हम कैसे किसी चीज के ऊपर कमांड को हासिल कर सके और अपनी बातों को लर्नर्स तक पहुंचा सके। एक छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जय किशोरी जी की, एंड आफ्टर दैट
I would like to request our honorable principal ma'am to continue. Sir, there is a video object as well. This is also a motivational speech given by her, which has some meaning. आप जो सोचते हैं वही आप करते हैं, जो आप बोलते हैं वही आप करते हैं। बोलने की ताकत बहुत ज्यादा है। अपने आप से जो कहते हैं ना, बात करना, आपसे ज्यादा एक्सपर्ट दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि आप जितना अपना अच्छा सोच सकते हो उतना दुनिया में कोई नहीं सोच सकता। आप क्या फील कर रहे हैं, आप किस चीज से जा रहे हैं, वो सिर्फ आपको पता है बस। और उसका सलूशन भी क्या होगा वो भी आपको ही पता है, पर आप सलूशन देखना नहीं चाहते क्योंकि आपको पता है उस सलूशन में हार्डवर्क है, फेलियर है, चैलेंजेस है, बहुत डिफिकल्टीज है। लेकिन ये भी पता है अगर इसको पार कर लिया तो डर के आगे जीत। तो यही दिमाग में रखना है कि फेलियर जो भी आए मुझे रुकना नहीं। अगर मैंने कोई चीज शुरू कर दी मुझे उसे एनी हाउ खत्म करना है, क्योंकि अगर ये बीच में छोड़ दिया तो कोई गारंटी नहीं है कि अगली वाली मैं पूरी करूं। उसे भी बीच में छोड़ सकते हैं क्योंकि फिर वो आदत पड़ जाती है। थोड़ी सी डिफिकल्टी आई हमें चीजें छोड़ने की आदत पड़ जाती है। छोड़ना नहीं, अगर एंटर कर गए तो उसे पूरा कर कर लेना है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जैसा मैंने कहा आपका विजन क्लियर। विजन यानी हम अधिकतर समय जो भी कर रहे हैं हम उनके डिसएडवांटेजेस ज्यादा दिखते हैं और वही हम नेगेटिव चीजें ज्यादा बोलते हैं कि मानो कर भी लिया तो उसके बाद जॉब नहीं मिलेगी। अरे क्यों नहीं मिली, उससे तो नहीं मिली, जरूरी है उससे नहीं मिली तो तुम्हें भी नहीं मिली। और हमारे सामने ऐसे कई होंगे जिन्हें अच्छी जॉब मिली होगी, अच्छा काम हो रहा होगा, पर हम उन्हें नहीं देखते क्योंकि हम कभी पॉजिटिव चीजों की तरफ नहीं जाते। जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं तब आप पॉजिटिव चीजों की तरफ ध्यान ना देकर हमेशा नेगेटिव चीजों की ओर ध्यान देते हैं। मैंने कई स्टूडेंट्स को कहते हुए देखा एग्जाम के समय, अब एग्जाम देने जा रहे हैं, क्यों टेंशन हो, पास नहीं हुआ तो अरे तो ये सोच ही क्यों रहे, ये सोचो अगर पास हो गया तो कितना अच्छा हो। उसके बाद नहीं भी हुआ तो आपने पहले से सोच रखा है कि फेलियर तो हैंडल करना ही है। लेकिन जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तब आप इतने स्ट्रेस्ड आउट नहीं होंगे क्योंकि आप एक बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग से जा रहे हैं कि अगर पास हो गया तो आप पहले जैसे आप डिसएडवांटेजेस राइट डाउन करते हैं, जॉट डाउन करते हैं, आप एडवांटेजेस करिए कि अगर मैंने ये काम कर लिया तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, मुझे काम कैसा मिलेगा, मेरी लाइफस्टाइल कैसी होगी, मैं कैसे वापस जीऊंगा, मेरे कॉन्टैक्ट कितने खुश हो जाएंगे, सब कुछ सोचिए। वो सब सोचने से आपको डबल पावर मिलती है। आप जितने खुश होंगे, आप जितने अंदर से मोटिवेटेड और पॉजिटिव होंगे, आप अपना काम डबल अच्छा करेंगे और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने किया। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं बाद में लगता है कि विश्वास किया मैंने कर लिया। मेरे साथ कई बार हुआ। मुझे शुरुआत में कभी भी अगर किसी चीज का डर लग रहा रहता है, सामने से मुझे पॉजिटिव चीजें दिखती है या मैं खुद पॉजिटिव चीजें सोच रही हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसा मैंने कहा पॉजिटिव स्पीकिंग या पॉजिटिव थिंकिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। जब मैं गाती थी पहले तो गाने से जब कई जन गा रहे हैं आपके सामने तो कई बार ऐसा होता है कि कई अच्छे भी आपके सामने गाते हैं, जो प्रोग्राम बड़ा हिट कर दिया उन्होंने और सब बड़े खुश हैं। उस समय हर किसी को क्या लग रहा होगा, मान लीजिए आपका पहला जो बंदा है उसने बड़ा अच्छा काम किया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और सब उससे इतने खुश है, लोग तालियां बजा रहे हैं, पागल हो रहे हैं, तो आपकी फीलिंग क्या होगी? नेक्स्ट आपका ही परफॉर्मेंस है। क्या सोचेंगे आप, बताइए, सच्ची बताइएगा। होना चाहिए ये तो अलग बात है, आप उस समय फील क्या कर रहे हो? डर, स्ट्रेस, टेंशन, नर्वस, मैं भी ऐसे ही करती थी। तब मेरे पापा ने मुझे एक बात बताई, ये नहीं कि प्रिपरेशन तो जैसी होती थी मैं वैसे ही करती थी, आप अपना 100% देते ही हैं, पर जैसा मैंने कहा कि बैगेज लेकर जाते हैं, वो बैगेज आपको इतना टेंशन में डाल देता है कि आपने जो याद किया वो भी आप भूल जाते हैं, या उस समय आप ब्लैंक हो जाते हैं। फिर एग्जाम से निकलती है आपको याद आता है ये तो मेरे कल ही पढ़ा था इसमें, पर उस समय आप इतनी टेंशन में हैं कि वो आप चीज भूल जाते हैं। मेरे पापा ने मुझे सिर्फ एक बात सिखाई कि अगर उस समय आप देख रहे हो प्रोग्राम चल
या सब बड़े अच्छे हैं, ये है वो है, सिर्फ एक ही बात कहना, मुझे माइक दे दो, मेरी बारी आने फिर दे। अब उससे मुझे क्या फील हो रहा है कि मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है, ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पास माइक आने दो, ये है पॉजिटिव थिंकिंग। उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता कि हाँ हर बंदा अलग है, उसमें अच्छी बात होगी, मुझ में उससे कहीं ज्यादा अच्छी बात, और वो मैं कर कर दिखाऊं, बस मेरे हाथ में माइक आने। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच्ची करी मुझ में मुझसे बहुत अच्छी बात नहीं, पर पॉजिटिव स्पीकिंग। आप अपने आप से क्या बातें करते हैं, आप क्या कह रहे हैं। देखिए लॉजिक हर चीज के पीछे होता है। कहते हैं ना, हमारे पेरेंट्स हमें हर बार कहते हैं कुछ भी आपने ऐसा नेगेटिव कह दिया, पढ़ाई को लेकर नहीं पर किसी भी चीज को लेकर आपसे कहते हैं ऐसे मत बोलो, अपशब्द कहते हैं ना, कितने मॉडल से मेरे घर में है कुछ भी ऐसा वैसा ऐसे मत कहो, अपशब्द उनकी नजर में अपशब्द है। और आप अगर लॉजिकल रीजन से सोचेंगे आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है, तो वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पीकिंग। आप क्या बोलते हैं आप वही फील कर रहे हो। और यहाँ पर कई होंगे जिन्होंने बुक द सीक्रेट पढ़ा होगा, उसमें भी कहा गया है कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आप वो चीज बार बार दिल में बोलिए। आप जितने कॉन्फिडेंस से, जितने ट्रस्ट से, जितने विश्वास के साथ वो चीज बोलेंगे, वो चीज आपके साथ होगी। और होगी का मतलब चमत्कार नहीं होगा, होगी का मतलब फिर आप खुद उसी रास्ते पर चलना शुरू करें। Thank you for listening attentively. Exactly the videos that are played in this conference call, they have some reasons to be played. जितने भी वीडियोस अभी तक मैंने प्ले किए, ये दूसरा वीडियो है। There is a reason to play such videos which is help you keep motivated. मदद करती है आपकी, हम सबकी, कि हम मोटिवेटेड, क्योंकि जिस समय डिस्ट्रैक्शन की कड़ियां हमें जकड़ देती है, उस समय कुछ ना कुछ खलल बीच में आता है। इन सब चीज से त्याग और परित्याग के लिए सेल्फ मोटिवेशन और खुद पे भरोसा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। Now I would like to hand over the mic to Honorable Principal Ma'am to just carry on with some of the next slides. Clap for her. Okay, one more activity. First there will be one activity and then some more slides. All the teachers are requested to please come to the front. Now you will be given a balloon. All of you will be given a balloon. Please come. यही है बस अब हो गया
ठाकुर सर, प्लीज थोड़ा सा हम लोग ऐसे साइड हो जाएंगे। किस तरफ फोड़ना है? आप जैसे फोड़ दो दूसरे अपने क्लास को तो चाहता है बलून से करता है और दूसरे के बलून को उड़ाना मतलब फोड़ना ये कोई आवड़ेगा ठीक है बट एट द सेम टाइम एक जगह में खड़े नहीं रहना अब नहीं होगा पड़ती हो To be the winner of the game, your balloon should last till the end. आपका balloon last तक रहना चाहिए आपके साथ। सबसे पहले सारे लोग अपने अपने balloons को फुला लीजिए। अनेक के साथ रहना नहीं सुनिए, सबको विनर बनना है ना कोई मत फोड़िए कोई नहीं फोड़िए किसी को नहीं फोड़िए Actually, मैं ये बात कहूँगा कि आप किसी दूसरे की बातों में ना आए। कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको विनर बनना है। तो सब विनर विनर आप अभी बन रहे हैं। कोई किसी का नहीं बोलिए कोई किसी बोलिए कैसा बोले? Okay. उधर दीजिए छिपा के लेते ना Okay, stop. अब फोड़ना बंद करेंगे। अब फोड़ना बंद कर देंगे। अब बलून फोड़ना बंद कर देंगे। Okay. Now, it's not yours, Professor. Remember, it's not yours. Okay. Okay. Those teachers who do not have balloons with them. मेरे पास रह गया Okay. मेरे पास I request those teachers, yes, who do not have their balloons with them, please go back to your place. जिन जिन टीचर के पास उनका बलून नहीं है, वो सिर्फ अपने प्लेस पे जाएंगे। मेरे पास है हाँ। Please, teachers, be at your place. पास है Please.
Please teachers, please have your tea on your plate. Please. Okay. होना भी है Chandy. Chandy sir, please come. अच्छा आप नहीं छोड़ना, आप नहीं छोड़ो, अरे सर। Teachers, will you please be quiet? So now, let me tell you, जिस समय मैंने आपसे कहा था, okay, so the guys that I said कि don't get distracted, कोई आपको distract करे तो आपको distract नहीं होना है, but you have to focus upon. ओके बहुत अच्छी बात है सर कंपटीशन सबके मन में होना चाहिए सबके मन में ये जज्बा ये लालसा होनी चाहिए कि मैं जीतूं और मैं जीतूं एक बात जो राहुल सर ने शुरुआत में ही कही थी वो ऑलरेडी हम भी बोले हुए थे सर एक्चुअली आप लोग प्रेशर किए कि नहीं सर सबको जितना था बोले किसी को हमने प्रेशर इसलिए दिया क्योंकि जिस तरीके से स्टूडेंट्स डेविएट होते हैं किसी की बातें सुनकर बीइंग अ टीचर अगर आपके अंदर भी सेम क्वालिटीज आ जाती है मीन्स हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी को कुछ न कुछ अभी भी चाहिए होगा तो मैं कह रहा था कि जैसा राहुल सर ने कहा कि कोई किसी का बलून नहीं फोड़ सारे के सारे लोग बेदर्द और ये जो रिकॉग्निशन अवार्ड्स हैं ये उन सारे लोगों को मिलते हैं जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं but he did not do that so I would like to call our principal ma'am to please reward them with something रात में बचा हुआ उसको करना pen or chocolate okay so we will have a big round of applause for the winners please clap again Okay, thank you very much, sir. वो डेविएट करने के लिए रेड वन उठा के रखे थे मेरा रेड वाला सुभाष
यहाँ पर होटल बनाएंगे और चाचा को छुपा यहाँ पर दिखेगा तो बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं, ये तो रॉन्ग हुआ। मले है ना, सर दिखेगा स्लाइड तो स्लाइड छोटे से फूलना है, चाहते का तीन को मिला आपको, तो हो गया। ए स्टॉप क्या मिलेगा? अब मोबाइल में ठीक है तो इधर देखिए Teachers, silence please. Now, the core, the main purpose for the activity was to learn, let you to learn that for winning it is not necessary to let others to lose. हमेशा ये जरूरी नहीं होता है कि अगर आप जीतना है, मतलब अगर आपको जीतना है तो हमेशा ये जरूरी नहीं होता है कि दूसरे को हराए, ठीक है? हमेशा टीचर्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, हर तरफ से ये चीज हम लोगों को मिलता है। टीचर्स स्टूडेंट को कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं यू विल हैव टू विन, लेकिन क्या ये जरूरी है कि हमें जीतना है तो दूसरे को हराना है? नहीं। सेंट्रल पार्ट इस गेम का मेन मोटिव ये था कि आपको ये समझाना कि अगर सब जीतेंगे तो दैट विल बी बेटर देन अगर एक जीतेगा, ठीक है? लेकिन होता क्या है इन जनरल टीचिंग प्रोसेस में भी हर एक को स्ट्रेस दिया जाता है, आपको बढ़ना है, आपको बढ़ना है। वेरी रियरली इट इज सेड सबको बढ़ना है, कहा जाता है? कोई कहता है? जनरली नहीं कहता, ठीक है? जैसा कि आनंद सर ने कहा, काफी सारे लोगों ने कहा जाता है, बताया जाता है व्हाट साउंड साउंड तो बड़ा इसमें नहीं आएगा। हाँ, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग जो कि इसका पार्ट है, जो कि मेरा स्लाइड है, टॉपिक है, दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट दैट। कोलैबोरेटिव लर्निंग मीन्स वर्किंग टुगेदर टू रीच अ कॉमन गोल। इसका मतलब है कि एक साथ काम करना और एक कॉमन गोल तक पहुंचना। हाँ, इट मे इंक्लूड स्टूडेंट्स teaching student, of course teachers teaching students, and at last student teaching teachers. हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हम ही टीचर्स सिखाते हैं। काफी टाइम ऐसा होता है कि लर्निंग के दौरान, टीचिंग के दौरान हम भी टीचर्स से सीखते हैं, हम दूसरे टीचर्स से भी सीखते हैं और हम स्टूडेंट्स से भी सीखते हैं। ये है, ऐसा होता है। काफी सारी चीजें होती है, जैसा एक एग्जांपल आनंद सर ने दिया भी था कि जब हम पढ़े थे तो हमने कुछ और पढ़ा था रिगार्डिंग सोलर सिस्टम, एंड नाउ इट इज क्वाइट डिफरेंट। जैसा कि उन्होंने बताया कि जब हम पढ़े थे तो 9 प्लैनेट्स था, और नाउ वन ऑफ द 9th प्लैनेट इज ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है? दिस इज वी लर्न व्हेन वी स्टार्टेड टीचिंग। काफी सारी और भी चीजें थी, जैसे जब हम पढ़ते थे तो मून की संख्या काफी कम थी, नाउ काफी सारे प्लैनेट्स में मून है। जब हम पढ़ते थे तो शायद सिर्फ अर्थ पर ही मून के बारे में बताया गया था, अब काफी सारे प्लैनेट में मून के बारे में बताया गया। तो काफी सारी चीजें होती हैं जो हम पढ़ाते समय सीखते हैं। हाँ, इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट्स आर रिस्पांसिबल फॉर वन अदर्स लर्निंग एज वेल एज देयर ओन, and they reach the goal implies that students have had to start understand and learn. जो मेन मोटिव होता है लर्निंग का, कोलैबोरेटिव लर्निंग का, वो होता है कि स्टूडेंट एक दूसरे के लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। और ये चीज क्वाइट कॉन्फिडेंट होता है, ये चीज क्वाइट जरूरी होता है, क्योंकि टीचर्स से शायद सीखने
प्रॉब्लम होता है, मे बी डर, हेजिटेशन, लेकिन अगर अपने पीयर ग्रुप से, अपने ग्रुप मेंबर्स से अगर कुछ पूछना हो तो उनके लिए ज्यादा आसान होता है. So next slide please. These are few advantages. Collaborative learning has many advantages over traditional methods of learning. For example, it enhances learning. It enhances learning. Learners gain rich insights from classroom exchange. It means कि जो लर्नर्स होते हैं वो एक दूसरे से आइडियाज शेयर कर ज़्यादा बेहतर सीखते हैं कंपैरिजन टू जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लर्निंग होता है जिसमें हम लेक्चर देते हैं या कुछ प्रोजेक्ट्स देते हैं. उसके कंपैरिजन में अगर स्टूडेंट से पूछते हैं या स्टूडेंट को बताता है तो वो बेहतर सीखते हैं. सेकेंड वन इज इनकरेजेस ऑनरशिप ऑफ आइडियाज. अगर स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो काफ़ी सारा नया आइडिया होता है जो बाहर निकल कर आता है जो कि शायद हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स के बाद अपना एक आइडियाज होता है. सेम प्रोसेस के लिए या सेम प्रोजेक्ट के लिए या सेम टॉपिक के लिए काफ़ी सारा आइडियाज आता है अगर स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो, अगर वो अपने एक दूसरे के आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं. इसके साथ साथ इट डेवलप्स रीडिंग एंड राइटिंग स्किल. लिखने और पढ़ने की क्षमता को भी ये बढ़ाता है. इट स्टिमुलेट्स टीचर्स क्रिएटिविटी. इससे टीचर्स की भी क्रिएटिविटी काफ़ी एनहेंस होती है क्योंकि कोलैबोरेटिव लर्निंग के दौरान टीचर्स भी काफ़ी कुछ सीखते हैं जिससे कि उनका भी टेक्निकल और उनका जो शेयरिंग आइडिया शेयर करने का जो व्यू होता है, तरीका होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इनहेंस होता है. एक्सपेंड्स टीचिंग एंड लर्निंग हॉरिजॉन्स. कोलैबोरेटिव लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि क्लासरूम से बाहर जाकर भी होता है. ज़रूरी नहीं होता है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग में जो चीज़ होता है वो क्लासरूम के अंदर भी ही होता है, जिसके वजह से स्टूडेंट्स लर्न्स फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, दे लर्न्स फ्रॉम कम्युनिटी रिसोर्स, they learns from social environment, they learns from physical environment, they learns from a lot of areas. That's why collaborative learning can lead to student success by depending the understanding of given topic. इसी वजह से जो collaborative learning है वो students के learning capacity को enhance करता है. Okay? Now the second topic is cooperative learning. Cooperative learning, that means learning by helping each others in the process of learning. So, in cooperative learning, small group of students who differ in ability work together as a group on their academic task. कोऑपरेटिव लर्निंग में अलग अलग ग्रुप के स्टूडेंट जिनका लर्निंग एबिलिटी अलग होता है, जिनकी सोचने का तरीका अलग होता है, जिनके लर्निंग आउटकम अलग अलग होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाला जाता है. जैसा कि शायद कल के सेमिनार में हुआ था. लीड व्हाट वाज दैट? एसएलसी. हाँ, स्टूडेंट लीड कॉन्फ्रेंस में कल शायद यही चीज हुआ था. अलग अलग लर्निंग एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में रखा गया था एंड वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस था दैट वाज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग. आनंद सर, थोड़ा सा बता. 29 So Bhaskar, thank you ma'am. Thanks for your information and आप given बहुत सारी चीजें collaboration मेन जो हमारे अभी मेरा मेन जो था
तो मैंने सुभाष सर को बोला है कि सर प्लीज आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं तो आई मैंने कहा कि सुभाष सर इज ऑलवेज रेडी सुभाष सर इज ऑलवेज रेडी कभी ना नहीं किया और ये चीज अच्छा भी लगता सुभाष सर नेक्स्ट स्लाइड 72. So collaboration is very important. Students when they teach others also. और मैं भी अपने नए नए बोर्ड के एग्जाम देते थे तो साथ में बोलते थे कंबाइंड स्टडी करने जाते तो कंबाइंड स्टडी होती है कंबाइंड स्टडी अपने क्लास के कुछ बच्चे साथ कंबाइंड स्टडी होता ही है कि कुछ लोग आपस में मिल गए साथ में बैठ गए जो चीज मुझे नहीं आती वो उससे पूछ लिया उससे नहीं आती मुझे बताना बहुत फायदेमंद होता है लेकिन जब आप उसको इंटेंशनली करते हो जब आप उसको इंटेंशनली नहीं करते हैं तो ये एक गॉसिपिंग का जरिया बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंटेंशनली अगर कंबाइंड स्टडी करते हैं दे परफॉर्म बेटर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है रिजल्ट भी अच्छी होती है एंड some other students are there who just worsen their academic results through combined study. So, collaboration in studies are very, very important, but it should be done with a purpose. Now, the success of student depends essentially upon the competence of the teachers. Their sense of dedication and their identification with the interest of the students committed to their the competence of the teachers is what? We all are born with some of the abilities. और हमारी अपनी जो एबिलिटी होती है दूसरों की एबिलिटी के साथ जब हम उसको कंपेयर करते हैं और अपने आप को इंफीरियर महसूस करते हैं तब हमें दो चीज आ सकती है एक है जेलसी और दूसरी कंपटीशन जेलसी आई तो फायदेमंद नहीं बट इफ इट इज कॉम्पिटेंसी इट इज वेरी वेरी यूजफुल चीज So, success of the student depends essentially upon the competence of the teachers. If that teacher is able to deliver so good in his or her classroom, and if such teacher is using such methods, such strategies, such rules and regulations, such implementation in his or her classroom, if the new things or the new way of teaching he has adopted or implemented in his or her classroom, why comes out? This is the competition and it really shapes the career of a child. Dedication, sense of dedication within the children develops towards the study. बच्चे उनके अंदर डेडिकेशन आने लगता है जब कंपटीशन अमंग द टीचर्स होती है तो उनको लगता है कि जब टीचर्स के अंदर इतनी कंपटीशन है वी शुडंट लैग हम लोगों को पीछे नहीं करना एंड दे सक्सीड सो व्हाट शुड वी डू वी शुड एनकरेज थिंकिंग टीचर्स आर बीइंग चैलेंज्ड utilize new approaches and methods they have employed to improve learning outcomes. They have to seek improved ways of teaching by developing new programs and instructional strategies such as inquiry approaches,
simulation games, computer assisted instructions, and program learning materials. Sometimes we just go for acquiring approaches. Last time, I remember during my childhood, we were asked to collect money for the old age home. So we just gathered in some groups and just moved from door to door, getting to know or having just the inquiry about those families who are concerned about the old age home. तो मैं छोटा क्लास 12 में था, तो मैं छोटा नहीं था, बल्कि कितना छोटा होगा आप समझ सकते हैं। तो मुझे मेरे ग्रुप में 4-5 बच्चों के साथ बांट दिया गया और ये कहा गया कि पूरे बुजुर्ग लोगों के लिए हमें जो है स्कूल से स्टूडेंट की तरफ से डोनेशन देनी है, आप घर घर जाकर के सबसे मांगो। And we were given a small bag, which was a bag family. बचपन थोड़ा सा नादानी से भरा होता है। घर घर जाकर के ये बोलना, being in class 12, खराब लगता, जाकर बोले कि भैया अंकल, हम लोग जो है वो बुजुर्ग लोगों के लिए पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप लोग देना चाहते हो तो 10-15 जो आपके बहुत सारे लोग देते भी, बहुत सारे लोग नहीं देते। समझने की बात ये है कि आप जब इस तरीके की इंक्वायरी करके चर्चा करते हैं तो उस समय ये बात समझ में नहीं आती कि स्कूल में ये सारी चीजों का क्या मतलब। स्कूल एक बड़ी संस्था होती है, and if it is exactly a bigger institution, then some of the donation they can get by themselves only. अपने पार्ट से डोनेट कर सकते, लेकिन स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना। Why the students are involved in that? So that they can themselves make such inquiries that who are the responsible citizens or the people in our society. Inquiry approaches कहीं न कहीं धीरे-धीरे उनकी समझ में आती है। Simulation games, computer assisted instructions, they all are very very helpful. Program learning materials, CDs are there, बहुत सारी चीजें। Python works clear. If it is not explained to you by the teacher, CDs and DVDs can explain. Thales theorems. If it is not explained to you by the teacher, or if you are not having your regular classes at your school, you can learn with the help of the computer. There is a CD made for this. बहुत सारे प्रोग्राम लैंग्वेजेस या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल लर्निंग मटेरियल्स हैं जो हमें मदद करते हैं। आज तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई कि whatever the information we seek for we get it from the Google। हर एक इंफॉर्मेशन जो हम रिक्वायर करते हैं वो हमें गूगल पे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the information provided and traditional responsibility of the teacher is to pass on to the student the information, knowledge and understanding of the topic appropriate and the age of their state of their studies. So it is the responsibility of the teacher, whatever you know or whatever, or to what extent you have learned, it has to be completely delivered to the student. Don't you think that some part of that can't keep to myself? जितना जानते हैं सबका सब बताना है, कुछ पार्ट बचा के नहीं रखना है, ज्ञान नहीं बताएंगे अगले नहीं बताएंगे। ये करके चलते हैं तो ये आपके अंदर एक कमी होगी। The role model, the teacher should model or exemplify what should be learned. Teach students learn not just from what their teachers say, but what they speak in the practice, and all the skills and attitudes they exhibit. बच्चे सिर्फ वही नहीं सीखते जो टीचर उनसे कहते हैं, बच्चे वो भी सीखते हैं जो वो सामने देखते हैं, अपने टीचर में देखते हैं, उनके बिहेवियर को देखते हैं, उनके स्किल्स, उनके एटीट्यूड और उनके नॉलेज लेवल को देखते हैं। ये भी उनके लिए एक बड़ी समझ होती है। The teachers as a facilitator, the key role of a teacher is as a facilitator and a support to exploring learning. Teacher is the one who facilitates learners to realize their potentials, articulate their skills and context specific experiences in ways that are acceptable in the wider context of our nation. Teacher is a facilitator who gets assurance. Or what assurance is given? Or he will
will ensure that my children are there and they are learning something. ये श्योरिटी अगर किसी टीचर के अंदर मन से आती है कि हाँ मेरे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तब आपका काम हुआ। अगर आपका मन आपसे ये नहीं कहता, आप इस चीज को लेकर के एश्योर्ड नहीं है कि मेरे बच्चे कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, means ये factor nothing. Then comes प्रैक्टिस में जो आता है, या हम लोग बच्चों की जो पोटेंशियल, उनकी जो अपनी काबिलियत होती है, उसको रियलाइज करके उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। नेक्स्ट स्लाइड सुभाषन। Since we are running late, so I just try to finish the slides in short. If you will have any problem between, you can just interrupt. Isn't it? You are free for that. Then comes teachers as the participants in the learner's efforts. Teacher is a participant in the learner's efforts and involving learning experiences and helping to develop program for learning. Teacher to find his own teaching style. There is no one method that is effective in causing all learners to learn in similar ways. कोई एक ऐसा तरीका नहीं है जिसमें कि सारे के सारे लर्नर्स एक ही तरीके से सीख सकें। ऐसा कोई तरीका ही नहीं होता। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द लेसन। मैंने सिखाया कुछ ऐसे स्लो लर्नर्स बच्चे होते हैं, मुझे कुछ खुद पे हंसी आती है कि मैंने ऐसा किया, लेकिन कभी कभी ऐसा कर देता हूँ, लेकिन ये मेरी जरूरत। जैसे मैंने कहा कि लेटर टू द एडिटर, तो हर एक लेटर टू द एडिटर में शुरुआत लाइक टू हैव लिटन थ्रू द कॉलर्स ऑफ योर स्टेट न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ ऑल द कंसर्न्ड अथॉरिटीज रिगार्डिंग। चलिए हर एक लेटर टू द एडिटर में चलिए, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बात अपने बच्चों से कह के रख दूं कि यही सारे लेटर टू द एडिटर में लिख देना और लास्ट में एक लाइन लिखना, thus I request you to kindly publish it in your newspaper so that some immediate actions could be taken. हर एक लेटर टू द एडिटर में लिख सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ यही कह दूं बच्चों को कि यही लिखूं, तो मैंने उनके इनोवेशंस या उनके थॉट्स को कहाँ जज, मैंने उनको जज नहीं किया। ये मेरी एक बड़ी भूल है, लेकिन समटाइम्स कभी कभी करनी पड़ती। जब एग्जाम सब पे होता है और बच्चे की समझ में कुछ नहीं आता, तो कभी कभी करना पड़ता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड वी डू सो। So each teacher has to find one's style of teaching through prospective practices. Everyone is having different type of practice. आपकी practice अलग है, आपके सब्जेक्ट की practice अलग है, आपकी कोशिश अलग, आपके सोच विचार अलग, आपके तरीके अलग, हमारे तरीके अलग, सबका अलग अलग तरीका और सबको इतना पता है कि मेरे अंदर वो फाइनल गुण है जो मैं दे सकता हूँ मेरे बच्चों को वापस मिलेगा। दरकार है इस चीज की कि वो फाइनल मूव एट फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं करें, या शुरुआत से उसको अटेम्प्ट नहीं करें। जानते कभी आप में से कोई ऐसा बिलीव करता है कि मैं पढ़ाऊंगा किसी बच्चे को, वो कितना भी स्लो लर्नर है उसकी समझ में नहीं आएगा? कोई ऐसा है? कोई ऐसा नहीं। सबको पता है कि मैं जो पढ़ाऊंगा, चाहे वो बच्चा कितना भी स्लो लर्नर क्यों ना हो, चाहे उसकी समझ में कुछ क्यों ना आता हो, लेकिन वो मेरी बात को समझेगा। रिक्वायरमेंट इज दैट फॉर दैट फाइनल दैट यू डोंट गिव फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से नहीं देंगे। So the first or the last moves are yours. It belongs to you and you are master of that. The main thing is that you have to utilize it the way you enter your classroom. Next slide. Recognize himself as a professional. He or she should be endowed with the necessary knowledge, attitude, competence, and commitment and enthusiasm, spirit of seeking new ways and ways capable of professional necessity.
he or she should be presented not only to the learners and the institution but also the emergent concerns and the larger social perspective. Teacher is there in order to grow the enthusiasm among the students. He himself to be sure enthusiastic. And his enthusiasm or the needs or the seekings, desire should be reflected when he is teaching the children. Teacher's sensitivity to students' needs and problems. One of the most important characteristics of a teacher is the ability to identify students' problem and needs. जब तक आप किसी स्टूडेंट के प्रॉब्लम को समझते नहीं हैं, आप उसका हल नहीं निकाल सकते। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को समझना होगा। सॉल्यूशन बाद में। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट, पर्सनल प्रॉब्लम, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम, या लाइफ का कोई प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, सोशल प्रॉब्लम हो, सबसे पहले तो आपको उस प्रॉब्लम को समझना होगा। Then you can get the solution. Next slide, sir. So, the last slide of the today's. Back to system. Please, sir, explain again. So, recognize himself as a profession. 7. Mixed language, Hindi and English. Yes. Recognize himself as a profession. Teacher should recognize himself as a professional. Teacher एक professional means उसकी एक responsibility है in his profession. उसे इस चीज को समझना पड़ेगा। ये चीज जाननी होगी। He should be endowed with the necessary knowledge. जितनी जरूरत है, जितनी दरकार है knowledge की, वो सब की सब उसके अंदर होनी चाहिए। If he is a teacher, attitude भी वैसी होनी चाहिए। Competence means, I said, there are two things, jealousy and competence. Among the teachers, some are prominent and some are only teachers. So to be the prominent teacher of your school, there should be a quality, and that is the competency. A good teacher must have commitment should be there and enthusiasm should be there. You should be committed. Your commitment should be there towards your job or your responsibility. Teachers come to the school and there is a good reason, very pious reason to build up the future of the children. तो इसके लिए कमिटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये एक ऐसा जॉब है जिसमें यदि कमिटमेंट नहीं हुई, थोड़ी सी भी चूक हुई या एंथुसियाज्म की चूक हुई, तो 100% कभी भी हम डिलीवर नहीं कर पाते। स्पिरिट ऑफ सीकिंग न्यू वेज एंड मीन्स, अपने अंदर ये लालसा होनी चाहिए कि नए तरीके, नए साधन अपनाएं। कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेंसिटिव, आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करो जो आपकी इनर क्वालिटीज। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बीइंग अ गुड टीचर रिक्वायर्स टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट। If you are not able to just express yourself as a very good student, you cannot be a good teacher. जब तक आप ये नहीं दिखा सकते कि आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप एक अच्छे टीचर कभी नहीं बन सकते। The qualities of the good students: good at listening, observant, and then the dedication towards the things that we are listening to. So, reflection and sensitivity of a teacher is also very, very important. Now, he or she should be perceptive not only to the learners and the institution, but also to the emergent concerns in the larger social perspective. Sometimes it is there, that is, I will just
said, I said that this last line is of great importance to you. And it means to our lives. मेरे बोलने से पहले आपने उस लाइन को शायद स्क्रीन पे पढ़ लिया. It's written कि everybody and anybody can't teach. Teaching requires passion and it's a mission. I shall repeat it again. Everybody and anybody can't teach. हर कोई या कोई भी पढ़ा नहीं सकता. Teaching requires passion and it's a mission. पढ़ाना एक जज्बा है और इसके लिए किस चीज के लिए ये एक मिशन, ये एक ऐसा मिशन है जिसमें यदि हम कामयाब हो गए तो मैंने बचपन में सुना था when I was in standard 1 or 2 कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. आज मेरी उम्र 37 इयर्स हो गई, आज भी मैं यही सुनता हूँ कि इंडिया इज अ developing country. If it will be a mission for we all teachers, very soon we will hear that India is a developing country. वो ING वहाँ से हटके ED हो जाता है. So let's take it as a mission. So with this, we come to the end of the training session today. Thank you a lot for listening to me and Honorable Principal Ma'am so attentively. Now, there are some questions to be asked to you based on the learnings you did today. So, I would like or I will request Honorable Director Sir to please pick up the first name from the bowl. There is a name written in the steps. Subhan. Subhan sir, please come. So the first question goes to Subhan sir. Pick your question yourself. The question is, what are different stages of project method? Answer please बताना. क्या है क्वेश्चन? What are different stages of project method? आप ही देना आंसर. मैं तो पास कर दूंगा. आज के ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ है क्या? पता चला कौन कितना सिंसियर है. पास कर. नहीं मैम सबके लिए अपना क्वेश्चन है. 22 क्वेश्चन है यहाँ पर. Project method means we have the word project. We thinking that what we told the student that giving a project of any subject, any topic, but Correct. Clap for Subhan sir. It was close to the correct answer, sir. So there is a recognition award for you. Clap for Subhan sir. नेक्स्ट है ये फटाक से कुमार सर. ना ही उठाएंगे अपने तो हम कहीं बेमानी में कोशिश करेंगे. क्वेश्चन दीजिए ना. उसका नाम दे ना. तो जल्दी हो जाएगा ना. State any more to fish
profession-related qualities of a teacher. State any four profession-related qualities of teacher. First thing that personality, knowledge, and dedication, and devotion for the student. These are. It was the correct answer. Chandri sir. Thank you. Chandri sir. Thank you. Kumar sir. On what factors does teaching method depend upon? On what factors teaching method depend upon? Okay, Okay, then thank you. Punishment भी है. Punishment होते हैं? नहीं, जो तो जवाब देने के लिए punishment भी है. Time आपने सर. इसका आंसर ये टीचर से पूछेगा क्या? चलिए निकालिए. sing a song, sir. There is a good punishment for you. 2 lines of the song. आने उसको पोस्ट कर. तमाम बहनों को जल्दी चलिए जल्दी से दीजिए. माइक दीजिए. What roles are played by students in collaborative approach of learning? In collaborative approach of learning, students can discuss in any topic. And students can do some activities together. Okay, Thank you, sir. correct. It was the correct answer. दीजिए. Kavashi sir was the correct answer. चलिए आइए ना जल्दी पुनः ना. जिनको डांस आएगा वो सब छोड़. चलिए पढ़ लीजिए. रिप्लाई करना है. 136 answers. और क्वेश्चन कैलकुलेशन आ गया. 136 totals था. उसमें इंडिया का रैंक 136 नहीं था. 136 कंट्री से पे क्वेश्चन 136 कंट्रीज पे रिसर्च हुआ था जिसमें इंडिया का रैंक 120 था. चलिए थैंक यू वेलकम. नहीं कम. आइए. नेक्स्ट रेडी ठाकुर सर. सबसे पता नहीं क्या सब कराना है. सर को नहीं चाहिए. हाँ? टाइम हो चुका है. कुछ कम भी करा सकते हैं. ठीक है सर मला सर इसके बाद आफ्टर दैट What are skills required for an effective teachers? अभी कौन लेटर नहीं बताना है ना. Full form of ICT. हमको क्या पता? पढ़ाते समय बताया गया था. मैडम 21st century. ओके चलिए थैंक यू मैडम. नेक्स्ट आइए नीरज सर. आपने कुछ सर दो और हैं. What are 4 main categories of 21st century skill? इसके बाद नीरज सर के बाद What are 4 main category of 21st century skills? आप उत्तर देंगे. चलिए सोच के आइए. चलिए आइए मला सर. तब तक आप चीटिंग कर रहे हैं. देख लिए सर Idea भी बोल दिया पहले. आइडिया नहीं है
नहीं हम नहीं कैसे नहीं ऐसे कैसे Full form of ICT. What is the full form of ICT? There is some other thing also, sir. Yes, you have two options. Either you answer to this question or there is one more seat waiting for you. this side as a punishment study next नाम किनका बोले थे हमें ना आइए मुझे तो बुलाना ही है 2 लोग को बुलाया जाएगा बस क्वेश्चन क्या है What have you got previous step? Please explain. affecting teacher skill ना फिर होती है कोई और चीज नहीं। लेकिन आंसर नहीं दिया है, तो हम इसको करते हैं माइक दीजिए What are the basic qualities of human being? First, love. Second, good human beings. Third, knowledge. Fourth, caring. चलिए ओके Correct answer, ma'am. Congratulations. You have a big number of girls who probably, ma'am. Neeraj sir, you didn't complete your. हाँ इनका सिर्फ बाकी रहे. बाकी क्या इनका सॉन्ग रह गया Sing a song. हाँ Sing a song. लीजिए बाकी उसी का नाम था आपका Okay. Thank you, honorable director, giving us a golden opportunity. बंद कर दे साचा रहता हूँ राम राम है तू ही सिया का नाम राधा का तू ही श्याम जन्मों जन्म का ये साथ है मीरा का तू भजन भज ले हरि पवन तू सीध की ये बात है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ भजन बिहारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ भजन बिहारी थैंक यू सर सांसी के बाद यही गलती होती है क्या राम शब्द के प्राय जैसे जैसे हम बोले वैकेंसी नहीं करेंगे फिर बोल में आप लोगों को कि हम भी जाते हैं उन्हें भी वो मिलता पुरस्कार इसलिए उससे किसी को वंचित नहीं किया जाएगा अब वॉलंटरी कर दिया गया क्योंकि इच्छा है बात सकते हैं नहीं तो हम लोग आगे सबसे पहले प्रोटेक्ट थैंक्स अपनी ओर से मैं दे देता हूँ कि जैसा कि मैं कहा कि फर्स्ट टाइम अपने कैंपस में ओनली फॉर द संस्कार ज्ञानपीठ के टीचर्स ने किया अपने स्कूल के रिसोर्स पर्सन और बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग हुआ आर यू एंजॉयिंग द ट्रेनिंग वो नीचे पता चल रहा होना भी चाहिए क्योंकि इससे हमारी परेशानी कम होगी कहीं आने जाने का 1-2 लोगों का रिसोर्स पर्सन रहेगा और बाकी लोग भी जिनको इच्छा हो एक ट्रेनिंग आ गई अप्रैल में ही या स्टेट से प्रिंसिपल मैम ध्यान देंगे पीआरपी प्रोग्रेसिव रिसोर्स पर्सन जो ये 2 है जिनकी वैलिडिटी सिर्फ अपने स्कूल में होती है उसके बाद एक और ट्रेनिंग आपकी होती है उसको बोलते हैं आरपी रिसोर्स पर्सन ट्रेनिंग होती है हाँ उसके थ्रू तो उसमें आप दूसरे स्कूल भी जा सकते हैं वहाँ ट्रेनिंग दे सकते हैं और वो ट्रेनिंग वैलिड होगा जैसे लास्ट ट्रेनिंग में वो किसान सर आए हुए थे वो रिसोर्स पर्सन अब सीबीएसई थे तो कहीं भी सीबीएसई में वो ट्रेनिंग दे सकते हैं ध्यान में आया है
आज भी ट्रेनिंग हम लोग करेंगे और थोड़ा कम लग रहा था, कोई एक स्कूल को और बुलाना है तो आकाश राय जैसे आप ट्रेनिंग लिए हैं उनको बुलाने का हम कोशिश करेंगे, तो वो रिसोर्स पर्सन रहेंगे, आप लोगों की ट्रेनिंग काउंट। शॉर्ट में ही करेंगे, इस पॉइंट 7 नंबर को हमने रिपीट करवाया था, बाकी ट्रेनिंग क्या हुई नहीं हुई उसका समरी वही है और उसकी आभा अभी भी झलक रही है एटीट्यूड की। जब बुलाया गया आना है, रिप्लाई करना है और सिंसियरिटी के साथ सुनना। ट्रेनिंग से आईसीटी ट्रेनिंग का पार्ट था, उसका फुल फॉर्म बताया गया था, आप लोग बता सकते हैं? इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। हाँ, क्या होगा? इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन तो गलत हो गया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। It's proved the attentivity of the Malaysian and one more teacher। नहीं समझ रहा, हिंदी बताते हैं। मलेशियन कितनी तन्मयता के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, उनके उत्तर से उनको ये क्वेश्चन मिला था और एक सर को और मिला था, ICT दो आदमी को मिला था ना। देखिए सर, तन कहीं और मन कहीं उसी का ये टेस्ट है। बच्चे का भी रिजल्ट अच्छा किसी स्थिति में नहीं होती है कि फिजिकली वो क्लास में प्रेजेंट रहते हैं और मन कहीं विचरण करता है। ट्रेनिंग में भी मोबाइल ऑन है, तो चलिए बहुत अच्छा रहा। कम से कम हम लोग इंडिपेंडेंट अपने आप में किए। टीचर्स भी धन्यवाद के पात्र हैं और हमारे दोनों रिसोर्स पर्सन हैं, तो इनके लिए एक जोरदार ताली होगा। निश्चित रूप से बहुत अच्छा हुआ, एक अलग कॉन्फिडेंस हम लोग पास आया। हम लोग दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे, खुद का काम करेंगे। और मैं सोचता फोटो सेशन एक चेयर की और जरूरत होगी, 2 रिसोर्स पर्सन और हम लोग